1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। फिलिपियंस 2 चैप्टर 19 वर्स से 30 वर्स और फिलिपियंस 3 चैप्टर 1 वर्स से 11 वर्स तक। फिर आइज़ाया 38 चैप्टर 39 चैप्टर। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन से 30 वचन तक और फिर आगे बढ़कर 3 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ते जाना है। और यशायाह की भविष्यवाणी 38 अध्याय 39 अध्याय हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सहायता कर, छोड़ दीजिए पवित्र आत्मा कि हम अपने बल से कुछ इसमें से समझ पाएंगे। ख़त्म कर दीजिए बात को खुदा। अगर समझाना है तो वो सिर्फ आप ही समझा सकते हैं खुदा। हम आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि ये वचन हमारे अंदर पूरी समझ में उतर कर आए और हम परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। फिलिपियंस 2 चैप्टर 19 वर्स से हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से 30 वर्स तक। बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस टू सेंड Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. But ye know the proof of him, that as a son with the Father he hath served with me in the gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation, because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life to supply your lack of service toward me. Chapter 3 1 verse से 11 verse तक पढ़ते जाएंगे। Introduction to beware of false teachers, the apostles' anxiety for the heavenly prize. First verse से पढ़ेंगे। Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless.
But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन से लेकर पढ़ते जाएंगे। 3 अध्याय के 1 वचन से 11 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तिमोथियुस और इपफ्रोदितुस 19 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा। पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। हम 25 वचन और एक बार पढ़ेंगे। पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और अभी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। अध्याय 3 को पढ़ेंगे 1 वचन से 11 वचन तक। सच्ची धार्मिकता। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था।
परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, हम 11 वचन से पढ़ेंगे कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रोसेसिंग में है ये सेंटेंस, आपको ध्यान रखना है। मसीही जीवन हम प्रोसेस में चल रहे हैं। आमीन। हम पहुंच रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग है, इसके अंदर से हमने हटना नहीं है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर तो इन वचनों को सुधार लाने के लिए, समझ होने के लिए, और पिता तेरे शांतिदायक वाचा हम में ठहरी रहने के लिए, हमारे अंदर परमेश्वर के गुण और काम प्रकट होने के लिए हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, हमें व्यवस्थित कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते। इस ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तो हमें ला रहा है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।